Hi students, good morning. And my name is of course Gautam Jain. And I'm a teacher who normally takes lectures on maths, physics, chemistry, and of course of class 10th. And majorly, my interest areas would be class 11th and 12th. Of course, science stream. But I just love to teach anything at all because I'm a teacher. Anyway, so what are we going to do today? Today we are going to start with something known as basic mathematical tools. ये आपके जो फर्स्ट यूटीज हैं या जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हैं ये उनमें ये क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं. इनफैक्ट इसके बिना हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं लिटरली. नाउ लेट्स सी व्हाई. दीज आर सर्टेन मैथमेटिकल टर्म्स जो बहुत कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं और जिनका मतलब आपको नहीं मालूम होता है. सो दैट इज व्हाट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू. So we are going to start with certain basic formulas of differentiation, integration, logarithm and standard forms of the numbers. Let's start the word differentiation. So what do you mean by the word differentiation? Differentiation means to differentiate. That means to break a particular thing into smaller forms. In simple words, differentiation का मतलब होता है जब हम किसी भी बहुत बड़ी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसे उतने बड़े फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. सो डिफरेंशिएशन इज एग्जैक्टली ब्रेकिंग द पार्ट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स. फिर आप स्मॉलर पार्ट में से कुछ सेक्शन का निकाल दोगे आंसर और फिर आप उसके बाद में उसको इंटीग्रेट कर दोगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटीग्रेशन? जॉइनिंग, चिपका दोगे. ओके, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड जॉइनिंग, that means that is exactly opposite of differentiation. So integration बिल्कुल उल्टा भाई है differentiation का. तो differentiation यदि ऐसे चलेगा तो integration ऐसे जाएगा. That's same. इसी को हम लोग derivative भी बोलते हैं. So it is called as differentiation or it is called as derivative. and जो integration होता है that is known as antiderivative और एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं उसको. Now why it is known as antiderivative? Because exactly ये इसका क्या है, उल्टा वाला फॉर्म है, and that is the reason why. Now let's try to understand some of the basic formulas. Then मैं कुछ questions यहाँ पर करूँगा and hopefully you should be able to understand. Then I'll try and make a sheet for you guys just to summarize all this up. Of course I'll leave my WhatsApp number, so if you are done with that sheet, do send that sheet on the WhatsApp number. I'll check it every single day and will give back to you. So let's see. So there are certain formulas. The first formula is d by dx of x to the power n. But sir, what is this d by dx? ये एक्चुअली में एक तरह का डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है. ये आपको बताता है कि वेरिएबल कौन है. तो इस कंडीशन में d by d of what? Who's the variable? x. तो इसका मतलब है ये जानता है कि मैं ऑपरेटर हूं और x इज माय मालिक. तो जो भी कोई मालिक बात करेगा ये उसको पहचानेगा, बाकी सबको उठा करके बाहर फेंकता जाएगा एज कॉन्स्टेंट्स. ओके, सो d by dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n minus 1. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल कैन बी, सपोज किसी ने आपको बोल दिया d by dx ऑफ x टू द पावर 7. वेरी सिंपल, जो भी नंबर ऊपर है उसको आगे लेकर के आ जाओ. 7 x टू द पावर 7 minus 1 और ऊपर से एक नंबर को कम कर दो. सो आंसर विल बी 7 x टू द पावर 6. एक और क्वेश्चन देखते हैं एंड द क्वेश्चन सेज d by dx ऑफ x टू द पावर 5. दिस विल बी 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम. 5x to the power 5 minus 1. This should be equals to 5x to the power 4. Now, if somebody says d by dx of x to the power minus 3, no problem, minus 3 आगे और एक पावर कम. So minus 3x to the power minus 3 minus 1, which should be equals to minus 3x to the power minus 4. और you can write it as minus 3 upon x to the power 4. जब भी कभी कोई पावर नेगेटिव में होती है अगर आप उसको डिनोमिनेटर में लाते हो तो नीचे आ जाएगा. That's so simple. Got it?
सो ये आ चुका आपके पास में। सो दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब यहीं पर ही साइमल्टेनियसली अपन इंटीग्रेशन भी लेके चलते हैं। आप बोलोगे सर लेकिन इंटीग्रेशन लेके चलेंगे तो खिचड़ी नहीं बन जाएगी। एक्चुअली नहीं बनती गाइस, दैट्स वेरी वेरी सिंपल, आई विल टेल यू हाउ। सो लेट्स सी। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx। यदि आप ढंग से देखो तो dx यहां डिनोमिनेटर में है, बट यहां पर dx न्यूमरेटर में है। सो इट्स दैट सिंपल। सो x to the power n dx should be equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1। यहां पर लास्ट में आंसर में एक c भी आता है which was constant। ये आपको हमेशा लिखना पड़ता है, that is constant। यहां पर dx का मतलब क्या है? वंस अगेन ऑपरेटर, तो इसका मतलब है ये अपने मालिक को पहचानता है, दैट इज x। सो इट इज x to the power n, x to the power n plus 1 upon n plus 1। अब हमें क्वेश्चन करके देखते हैं दोनों के साथ में, देखते क्या आंसर आता है। सपोज कर लो मैंने किया d by dx ऑफ रूट x। अब रूट x का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? d by dx ऑफ x to the power 1 by 2, because square root of x का मतलब 1 by 2, so that means 1 by 2, ये तो नंबर आगे आ जाएगा, and x to the power 1 by 2 minus 1। क्यों? because मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। so ये आ चुका है मेरे पास में 1 by 2 x to the power minus 1 by 2, right। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा so it can be written as 1 by 2 root x। क्यों? because x की पावर हाफ डिनोमिनेटर में आएगा and this will become 1 by 2 root x। now magically एक काम करते हैं, इस बार हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं 1 by 2 root x का, देखते हैं क्या आता है। let's see। so इंटीग्रेशन में आपको ये वाला पार्ट मालूम है, so let's see। first इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 2 x to the power हाफ, यही लिखा था, ओके। एंड साथ में dx इज द ऑपरेटर। अब dx बोलेगा ये मालिक है, ये पता नहीं कौन आ गया है कहां से। सो ये इसको बाहर फेंक देगा एंड दिस विल बिकम 1 by 2 ऑन द आउटसाइड एंड दिस विल बिकम x to the power minus half dx। मैं ये x to the power minus half को ऊपर लेके आ गया। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 upon 2 तो बाहर है, बाहर ही रहेगा बिकॉज dx ऑपरेटर है, वो तो केवल मालिक का लॉयल है, दैट इज x का। सो यहां पर आ जाएगा x to the power minus half plus 1, minus half plus 1। क्यों? बिकॉज यहां पर आ रहा है अपॉन minus half plus 1। so what do you think the final answer should be? final answer should be 1 by 2, then comes x to the power 1 minus half is half upon 1 minus half is half। so this 2 will go in the numerator और in simple words ये cancel हो गया। so answer is root x। यदि आप ढंग से देखोगे तो जो भी आपने डिफरेंशिएशन किया उसका जो भी आंसर आया, यदि आप उसी आंसर का इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा से वही क्वेश्चन बन जाना चाहिए डिफरेंशिएशन का। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि डिफरेंशिएशन तो एग्जैक्टली एंटायर डेरिवेटिव है, उल्टा चलता है, दैट्स द रीजन व्हाई। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन आल्सो। सपोज मेरे पास में एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7। तो आंसर क्या आएगा इसका? दैट इज x टू द पावर, यदि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब चीजों को ज्वाइन करता है, तो ये हो जाएगा 7 plus 1 अपॉन 7 plus 1 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा मेरे पास में x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। दैट्स ऑल, इट्स डन। अब एक काम करता हूं, यदि मैं इसी नंबर का डिफरेंशिएशन करूंगा, देखता हूं क्या आता है, बिकॉज ये है इंटीग्रेशन विच इज द एंटायर डेरिवेटिव। अब मैं इसी का डिफरेंशिएशन करता हूं, देखता हूं क्या आता है। सो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 8 अपॉन 8, राइट। सो ये आ जाएगा आंसर x टू द पावर 8, ये 1 बाई 8 तो बाहर जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x to the power 8। What do you think? It should be 8, आगे आ गया, x to the power 8 minus 1 is 7 upon
एंड कितना आ जाएगा, ये 8 तो पहले से ही है, 8 and 8 कैंसिल, वंस अगेन x to the power 7. सो ये कंटिन्यूसली दोनों के दोनों ऐसे ही बिहेव करते हैं. दैट इज एक में फॉर्मूला आता है, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और ऊपर से एक पावर कम कर देना. भाई इंटीग्रेशन में जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड कर देना और वही नंबर नीचे लिख देना प्लस सी करके. सो दैट्स ऑल, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. अब अपन और आगे फॉर्मूलेस की तरफ में बढ़ते हैं. सो लेट मी रब दिस. Now, if I am talking about the word, that is now the second formula. ये formula बहुत important है guys. So, second formula goes like this: d by dx of sin x, which should be equals to cos x. यदि आप d by dx of trigonometric function sin x करते हो तो आंसर आता है cos x. यदि आप इंटीग्रेशन करते हो of again cos x तो आंसर क्या आ जाएगा, sin x. एग्जैक्टली उल्टा. सो एक्चुअली में यदि आपको देखो तो आपको ट्रिक मिल चुकी है. जो भी इसका आंसर आता है यदि आप उसी आंसर का इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा से क्वेश्चन बन जाएगा. एक और देखते हैं. d by dx of tan x, it should be equals to sec square x. Now do not worry, जब ये चैप्टर आपका मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा उस टाइम पर ये रूल भी आ जाता है कि ऐसा क्यों आता है sec square x. So if you want to know क्यों, then you have to understand the first principle method. बट अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल फॉर्मूलेस कर रहे हैं जो आपको लर्न करना है. So now the third integration of, and that is sec square x dx. अब तो आपको ट्रिक ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आई एम श्योर आप लोग चिल्ला रहे होंगे आंसर्स. एंड दैट शुड बी व्हाट, tan x plus c. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. d by dx of cos x, it should be equals to minus sin x. यहां पर आता है फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर मैंने लिखा, मान लो माइनस नहीं लिखते, साइड में लिख देंगे एक बार. सो साइन एक्स डी एक्स यदि करूंगा तो आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी. एग्जैक्टली ऑपोजिट. नेक्स्ट फॉर्मूले पर आता है. डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स. कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, राइट. सो कोसेक एक्स और आंसर आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स cot x. cosec x का आंसर माइनस cosec x cot x. Let's now find out the integration. Integration of cosec x dot cot x should be equals to, and the answer would be minus cosec x plus c. Let's now move on to the next formula, that is d by dx of sec x. Answer should be sec x tan x. So if I am going to now do this, that is 6, that is integration of, that is sec x tan x, and this should be equals to what, that is sec x plus c. Next पर आते हैं, that is 7th, and this is going to be what, that is differentiation of sin tan cosec sec and cot और कर लेते हैं. d by dx of cot x, it should be equals to minus cosec square x. On the other hand, integration of cosec square x dx should be equals to minus cot x plus c. Got it? Now next, d by dx of d by dx of e to the power x. What is e? e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो उसका आंसर आता है e to the power x
What do you think for the integration of this part? That is integration of e to the power x dx should be equals to same. क्यों? Because guys जब e to the power x का e to the power x आएगा तो इंटीग्रेशन भी तो सेम ही आएगा. Next, ninth, d by dx of, now what? That is say मैंने ले लिया यहाँ पर log x. log logarithm के लिए होता है which should be equals to 1 upon x, और यहाँ पर आएगा ninth integration of 1 upon x dx should be equals to log x plus c. Right? Next पर आ जाते हैं. d by dx of any constant number. Now आप जानते हो guys constant number तो हमेशा बाहर निकल जाएगा, so the answer will be 0. On the other hand, integration of constant dot dx should be equals to, that is constant into x plus c. बस इसके साथ में x आ जाता है. ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर सिंपल फॉर्मूलाज. दो गाइज इसके आगे भी और बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स. बट अभी के लिए आपको केवल इतने से फॉर्मूले लर्न करने हैं. That is d by dx of x to the power n, sin x, tan x, cos x, cosec x, sec x, and then same integration के formulas. तो यदि आप अभी एटलीस्ट ये 10 भी कर लोगे तो लाइफ काफी सिंपल बन जाएगी. Got it? So I'm just getting a side. If you want to take a snapshot or a screenshot, take the screenshot of this. This is today's by the way homework. That is आपको differentiation और integration के formulas note करने हैं, and this is what you need to learn. Now without wasting time guys, और कल हम इसी के आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व. फाइन. सो आज के अंदर जो मैं शीट भेजूंगा आपके पास में, दैट इज गोइंग टू बी अ सिंपल शीट जिसमें बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है एंड आंसर्स देने हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. कल मैं आपको कुछ मैं रूल्स भी बताऊंगा कि आखिर ये रूल्स कैसे काम में आते हैं. ओके, नाउ अब आते हैं द वर्ड लॉगरिथम पे. सो आई एम गोइंग टू टुडे टेल यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. Now let us see what are those properties. So let's rub this. And guys, ये terms जो मैं आज सिखा रहा हूँ लेक्चर में, ये बहुत करना जरूरी है, because इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. Okay, so logarithm. सबसे पहले the first property of log is log m into n should be equals to, and the answer is log m plus log n. Second property, log m, यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. log m plus log m minus log n should be equals to log m upon n. Next property, log m to the power n should be equals to n log m. सर बट ये आप log कर रहे हो, ये होता क्या है? log का प्रॉपर मतलब है logarithm. Logarithm it is a mathematical tool to find out answers to simple questions. Okay, now log m to the power n should be equals to n log m. बस इतना ही ध्यान रखना है. एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं तो ये भी आके बहुत काम में आएगा. log a should always be equals to 1. ओके, सो ये वाला एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूं. log a b, ये b बेस में है और a नीचे सफिक्स में है. इट शुड बी इक्वल्स टू log b अपॉन log a. अब इसके कुछ बच्चों वाले क्वेश्चंस गाइस, लेट्स सी कैसे. सपोज करो किसी ने आपको ये एक क्वेश्चन दे दिया, log 2 into 5. नाउ प्लीज रिमेंबर, ये जो log के बाद में जब आप ब्रैकेट लगाते हो इसका मतलब ये log की डिग्री है. सो एक्चुअली में यू कैनॉट कट. सपोज किसी ने आपको ऐसे लिख दिया log 2, सो यू कैनॉट डू इट लाइक दिस कि log 2 से log 2 कैंसिल. नो, इट इज नॉट अलाउड.
इन सिंपल वर्ड्स यू कैनॉट नेवर एवर चेंज डिग्री। ये जो डिग्री है आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। नाउ log 2 into 5 comes out as कितना आ जाएगा log 10, but that's not you are going to write, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, so you are going to write log 2 plus log 5, राइट। अब आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। मान लो कभी क्वेश्चन में आया log 2 plus log 5, so you are going to write log 2 plus log 5 and it should be equal to log 2 into 5. Next, log, मान लो किसी ने आपको लिख दिया 3 cube, so you are going to use the property log m to the power n, तो आप इसको लिख सकते हो 3 log 3। नेक्स्ट पर आता है, सपोज किसी ने आपको बोल दिया log 7 minus log 5। प्लीज रिमेंबर log 7 minus log 5 मतलब ये नहीं होता log कॉमन निकाल दो और 7 minus 5, नो, ये डिग्री में है, यू कैन नॉट चेंज डिग्री, सो इट विल बी रिटन एज log 7 upon 5, गॉट इट। और ये 7 upon 5 आप किसी से भी कट नहीं कर सकते। मान लो कभी ये आ गया 7, तो डोंट कट द 7 with 7, ये 7 upon 5 इसकी डिग्री है which cannot be changed, okay। So log 7 minus log 5 should be equal to log 7 by 5। एक और देखते हैं, सपोज किसी ने आपको लिख दिया log 180, चलो और सिंपल log 18 लिख देते हैं पहले। अब इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप रफ वर्क में जाओगे और रफ वर्क में जाने के बाद में you are going to take the prime factorization of 18. So 2 is the smallest number, 2 9 times 18, 3 times, 3 1 times. Now can I write 18 like this? 2 into 3 into 3. So if I am writing 18 as 2 into 3 into 3, so that means that 18 can be written like this because 2 into 3 is 6, 6 into 3 is 18. So अब आप इसको कैसे लिखोगे log 18 को? So now you have to write it. Oh, मैंने इसको भी रब कर दिया. So that is you can write 18 as 2 into 3 into 3. So let's write as log in bracket 2 into 3 into 3. Now you will be writing it like this, that is log 18. अब आप रूल लगाओगे, कौन सा रूल? डिग्री के अंदर जब भी कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है, यू कैन स्प्लिट इट विद द पार्ट ऑफ प्लस। सो यू कैन राइट log 2 प्लस log 3 प्लस log 3 क्यों? m into n into p into q into r can be written like this. So log 18 can be written like this, or you can write it like this log 2. अब ये दोनों कितनी बार लिखे हुए हैं? 2 times, so you can write it plus 2 log 3. या आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो किसी ने आपको एग्जांपल दिया log 256। नाउ क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो लेट्स फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन। 256 2 times 128, 2 times 64, 2 times 32, 2 times 16, 2 times 8, 2 times 4, 2 times 2, and 2 times is 1. So how many times it is coming now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So can I write it like this? Log 2 to the power 8. Now if I am using the word log 2 to the power 8, so can I write it also like this? Log m to the power n, log m to the power n. So it can be written as 8 log 2. That's all. This is expression in the simplest form. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो अब हम लोगों ने माइनस की बात कर लिया, ये तीनों प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, हम इसकी बात करते हैं। सपोज किसी ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 6 एंड दैट इज log base 10 एंड यहां पे किसी ने दे दिया 100।
सो आपको मालूम है log बेस में अलग है और यहाँ पर नंबर अलग है, सो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, दैट इज log 100 अपॉन log 10। अब क्या करोगे? वेरी सिंपल, log 100 और 100 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं। सो 2, 50, 2, 25, 5 is 5 and 5 is 1. So it can be written as, it should be equals to log 2 दो बार लिखा हुआ है, so let's write 2 square, and 5 भी दो बार लिखा हुआ है, so let's write 5 square। और ये क्योंकि डिग्री के अंदर है, so let's write it like this। log 10 को can I write it like this? Now if you are thinking that you can directly cut this 2 with 2, no, you cannot cut it, so do not do that mistake which normally everybody does, and that is what? To cut it like this, right? So let's, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको? Very simple, that is log 2 square plus log 5 square। Did you get it? Okay. So log AB can be written as log B upon log A, ध्यान रखना। So मैंने ये लिखा, then whole upon, और यहाँ पर आ जाएगा log 2 plus log 5। And now what you can do is, इस 2 को आगे लेकर के आ जाओगे तो ये बन जाएगा 2 log 2 plus 5 log 2। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है? log m to the power n होल अपॉन, और यहां पर भी आ जाएगा क्या चीज, बल्कि यहां पर 5 नहीं आएगा, सॉरी, यहां पर आएगा log 5, दिस इज राइट, एंड देन नीचे आ चुका है आपके पास में log 2 प्लस log 5। नाउ कैन यू टेक आउट समथिंग कॉमन? ऑफ कोर्स यस सर, वी कैन टेक आउट 2 कॉमन, सो ऊपर बचेगा log 2 प्लस log 5 और डिनोमिनेटर में बचेगा log 2 प्लस log 5। So this will be cancelled. Answer is what? 2. That's so simple. Got it? So भूल से भी guys shortcuts मत करना, otherwise teacher will of course give you the wrong answer. Now let's move on to the next property, which is, suppose if somebody says log, मैंने यहां पर लिखा 7 और यहां पर भी मैंने लिखा 7, so answer is 1। जब भी दोनों के दोनों सेम होते हैं, this is known as the base of the log, while this is known as the, of course, the number, right? So please remember that जब भी कभी base and this particular degree same होंगे, so answer is 1। So this is log. So I am going to give you certain questions on this as well. Now let's move on to the word standard form। अब standard form का मतलब क्या है? जितने भी ये जो मैं आपको टर्म्स दे रहा हूं, ये ऑफ कोर्स मैं आपको आज ही इसका शीट भेज दूंगा, सो आई विल ऑफ कोर्स राइट माय नंबर आल्सो। So just in the case if you feel like, then let me know, I'll add you to the group of the class 11th guys, and of course I'll keep on sending you the sheets। Now, what do you mean by the word standard form? Suppose करो किसी ने कोई नंबर लिख दिया 232, so आज के बाद में एक हैबिट बना दो, at least in physics and chemistry, that can you write like this, 2.32 into 10 square। सर ये क्या किया? वेरी सिंपल, अच्छा 232 है तो इसका मतलब जो डेसिमल होगा वो 232 के बाद में ही आएगा, 232.00। यदि मैंने उस डेसिमल को यहां से शिफ्ट किया तो कितना जंप कराया? 1 and 2। सो जितने भी आप डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हो नंबर के, वो हमेशा आ जाता है 10 स्क्वायर। अब यदि आपको चेक करना है कि आपने जो किया है वो सही है या गलत, वेरी सिंपल, राइट इट लाइक दिस, 2.32 into 100 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 232 ही आ जाएगा। सो एक्चुअली में आपने कुछ नहीं किया, इट्स जस्ट द सेम पार्ट। गॉट इट? नेक्स्ट, सपोज कर लो किसी ने आपको एक नंबर बोला 700, सो हाउ कैन यू राइट? 1, 2 decimals on the left, so it's 7 into
10 to the power 2. किसी ने आपको बोला एक नंबर 2 7 1 3 9 5 8 6 1 2 4. आपको डेसिमल्स हमेशा 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद में ही लगाना है. So decimal is right over here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So I'm going to write it 1.27 3 9 5 8 6 1 2 4 into 10 to the power 10. Let's see another one. Suppose आपने यदि ये लिखा 3 7 8 1.2114. Now what you should be doing? Very simple. You can write this like this. 3.78121114. डेसिमल हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में आता है. कितना शिफ्ट करना पड़ा? 1 2 3. So you are going to write into 10 to the power. ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर्स के लिए. व्हाट अबाउट द डेसिमल फॉर्म्स? सपोज कर लो so always write in the scientific form or the standard form like this 1 2 3 4. So the answer would be 2.356 into 10 to the power what? इस बार डेसिमल्स राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट, फ्रॉम left towards the right. So it's 1 2 3 4. So answer will be 10 to the power -4. जब भी कभी आप डेसिमल्स को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करोगे ऑलवेज माइनस साइन. जब भी कभी आप राइट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे ऑलवेज प्लस साइन. अनदर एग्जांपल. आंसर विल बी 1 2 3. 1.265 into 10 to the power -3. सपोज करो किसी ने आपको बोला एक नंबर 0.731. नो प्रॉब्लम. 7.31 into 10 to the power -1. किसी ने बोला नहीं 74.236. So it can be written as 7.4236 into 10 to the power 1. क्योंकि आप राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो. That's all. So this is all from my side, guys. I'll just write my number. So if you want, my number is 9921037160. And of course my name is Gautam Jain. So what you can do is you can send a message on this number and I will add you to the class 11th group, and then I'll keep on sending you these small worksheets. तो आज के worksheets में I'll try and give it to you around 10 fill in the blanks or 20 fill in the blanks or questions which you need to answer. Fine. Thank you guys once again so much for being with me. Do by the way write this up, and if you want, by the way, any of your friend who should also join with you, so for having a very healthy competition, ask them to have this number. Thank you guys once again. Enjoy, be safe, love you all, take care, bye.